فرمایا تھا اب میں نے قرآن عظیم، فرقان حمید، برہان رشید، کتاب شفا، کتاب ہدا سے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دو لوگوں سے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس لیے میں نے محبت رسول کے حوالے سے موضوع کو چن کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، تاکہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان اقدس میں گستاخی کے کلمات کہے جا رہے ہیں، ایسے عالم میں ہم مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی محبت کی روشنی اور چراغ اور بھی جلنا چاہیے، محبت مصطفیٰ کے دیوں کو اپنے دلوں میں اور جلانا چاہیے۔ آؤ ذرا دیکھو کہ رسول پاک کی محبت اور ان کی الفت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن یہاں تک کہ سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے۔ اگر اس محبت کی داستان کے صفحات کو الٹ کر دیکھیں اور موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو آج ہم بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم رسول مختار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن بتاؤ کیا یہ محبت اصلی ہے یا پھر فرعی ہے؟ یہ جو محبت کا دم ہم بھرتے ہیں، اس محبت میں کوئی دم بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس محبت میں کوئی طاقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس محبت میں کوئی پاور بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ محبت صرف زبانی ہے یا قلبی ہے؟ یہ محبت صرف زبانی ہے یا عملی ہے؟ یہ محبت صرف زبانی ہے یا زندگانی ہے؟ تو اگر آپ نظر عمیق ڈالیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا آج معاشرے کے ایک ایک انسان کا یہی نعرہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا محبت کا ثبوت یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے فرمان کو ٹال دیا جائے، جس سے محبت کی جائے اس کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا جائے، جس سے محبت کی جائے اس کے فرامین کو ٹھکرا دیا جائے، جس سے محبت کی جائے اس کے حکم کی فرما روی نہ کی جائے؟ عزیزان گرامی وقار، انسان پریشان، مسلمان مارا جا رہا ہے، کہیں اپنے تلواروں سے لوگ مسلمانوں کے خون سے رنگ رہے ہیں، کہیں بم بارود سے بال بچوں کو اڑا دیا جا رہا ہے، کہیں گولیاں سینے پر اتار دی جا رہی ہے۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے ہم تو رسول کے چاہنے والے اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہم مسلمانوں پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اللہ کی مدد ہم پر کیوں نظر نہیں آتی؟ کبھی یوٹیوب پر، کبھی فیس بک پر، کبھی واٹس ایپ پر یہ تحریر ملتی ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد نازل ہونے والی ہے۔ یہ زمانہ گزرتے گزرتے 10 سال تک گزر گیا، فلسطینی مارے جا رہے ہیں، برما والے مارے جا رہے ہیں، ہندوستان کے ایک ایک علاقوں میں مسلمانوں کو پکڑ کر خون میں رنگین کر دیا جا رہا ہے اور ان کے خون سے ہولی کھیلا جا رہا ہے، لیکن یہ مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ نصرت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس پر بھی کبھی غور کیا؟ اس پر بھی کبھی فکر کیا؟ اس پر بھی کبھی سوچا کہ نہیں سوچا کہ آخر ہم اگر ایمان والے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ اللہ کی حمایت کیوں نہیں آتی ہے؟ سن لو، اللہ کی مدد مومنوں پر آتی ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن کیا ہم اپنے ایمان میں پختہ ہیں؟ کیا ہم اپنے محبت میں مضبوط ہیں؟ کیا ہم اپنے محبت میں پختے اترتے ہیں؟ تو آج کا انسان زبانی طور پر ضرور یہ کہہ دے گا کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی مثالیں اگر دی جائے تو یہی انسان اس رسول کے فرمان کو ٹالتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک مسلمان، سچا مسلمان اگر ہوگا اور رسول کے فرامین پر عمل کرے گا، اللہ اس کی دعا کے بدولت، اللہ اس کی دعا
अल्लाह के बदौलत मुसलमानों पर भी रहमो करम की बारिश बरसाएगा। लेकिन फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, मदद के आस में मुसलमान आज इंतजार देख रहा है कि अल्लाह की बाराने रहमत कब नाजिल होगी, वो मदद के तमगे कब हमें मिलेंगे, वो नुसरत के बादल कब हमारे सरों पर छाएंगे। लेकिन मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, लेकिन इस नुसरत और इस मदद, अल्लाह की मदद हम पर नाजिल नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल नहीं करेगा उस पर अल्लाह की मदद नाजिल नहीं होती है। जो रसूल के फरमान को अपनाएगा नहीं, उनके हुक्म पर अमल करेगा नहीं, अल्लाह की नुसरत और मदद का वो हकदार ही नहीं है। एक मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, तारीख की ये एक अजीम मिसाल है। अगर अपने दिल में इस मिसाल को नक्श कर लिया, मोहब्बत रसूल गालिब हो जाएगी तुम्हारे नफ्सों पर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे उहद के लिए निकलते हैं। उहद की सरजमीन पर पहुंचते हैं। कुफ्फारे मक्का से जंग होने वाली थी। उन कुफ्फारों ने बद्र में जो हार और शिकस्त खाई थी, उसके बदले एक बड़े फौज को लेकर जानिबे मदीना रवाना हो जाते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्ती मदीना से निकलकर उहद के पहाड़ी के दामन में जाते हैं और 50 सहाबा से कहते हैं कि वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम था जबल रुमात, कि जबल रुमात पे 50 सहाबा को जो कि तीर अंदाज से कहा खड़े हो जाओ, जब तक मेरा हुक्म ना हो इस पहाड़ के नीचे न उतरना। उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर मेरे रसूल ने उनको मुतअय्यन कर दिया। अब उधर से कुफ्फारों का लश्कर आ रहा है और पहाड़ी के ऊपर तीर अंदाज को देखकर वो यकबारगी अंदर आ नहीं सके, एक बार में वो हमला नहीं कर सके, इकट्ठे जमा होकर के वो अंदर घुस ना सके। वो थोड़े थोड़े आते रहे और मारे जाते रहे, थोड़े थोड़े आते रहे और मारे जाते रहे। यही हिकमत थी मेरे रसूल की कि अगर 50 सहाबा जो तीर अंदाज है उस पर खड़े हो जाएंगे तो यकबारगी वो हमला नहीं कर सकेंगे। आखिर मामला ये होता है, कुफ्फार मारे जाते हैं, इतने काटे जाते हैं कि उन्होंने अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया। बकिया जो बचते हैं वो भागने लगते हैं और उन्होंने भागने ही को अपने लिए अमन समझा, वो भागने लगते हैं। यहां तक कि पहाड़ी के नीचे जो सहाबा थे, जंग लड़ रहे थे, वो कुफ्फारों के माल को लूटने लगते हैं, उनको हासिल करने लगते हैं। तो वो 50 सहाबा जो पहाड़ी के ऊपर थे, उन लोगों ने आपस में मशवरा किया और कहा कि जंग तो हम जीत चुके हैं, कुफ्फार भाग चुके हैं। उन्होंने इस्तिहादन ये फरमाया कि बताओ अब हम भी नीचे चलें, हम भी चलते हैं और जाके हम भी सामाने गनीमत को लूटते हैं। तो उसमें से कुछ सहाबा ने कहा नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जब तक अल्लाह के नबी हमसे ना कहें हम यहां से हिले भी नहीं, यहां से जाएंगे भी नहीं। 50 सहाबा में से 40 सहाबा पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, वो सामान लूटने में महव हो जाते हैं। और खालिद बिन वलीद जो कि उस वक्त काफिरों के लश्कर में शामिल थे, उनकी तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि छोटी सी पहाड़ी की टीले पर 50 की जगह चंद आदमियों का सर नजर आ रहा है। वो एक लश्कर तैयार करते हैं और दोबारा आके हमला करते हैं। जो 10 सहाबा उस टीले और पहाड़ी के ऊपर थे, वो 10 के 10 शहीद कर दिए जाते हैं। फिर मामला यहां तक पहुंचता है कि वो पहाड़ी के नीचे के रास्ते से उहद के मैदान में भी दाखिल हो जाते हैं। अब मुसलमान उसमें तो सामान लूटने में महव थे, वो यकबारगी हमला करते हैं। हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमैर, हजरत अमीर हमजा सैयदुल शुहदा उसी में शहीद हो जाते हैं। उसी में हजरत अमीर हमजा के पेट को चाक किया जाता है, उनके कलेजों को निकाल कर एक औरत चबा जाती है। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला जिनके एक एक उंगली को काट कर, उनके कान, नाक और लब को काट कर उसको धागे में डालकर गले में माला पहन लिया जाता है। उसी जंगे उहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदाने मुबारक शहीद हो जाते हैं। ये खसारा कैसे
कैसे हुआ, ये नुकसान कैसे हुआ, ये शिकस्त क्यों हुई? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि टीले से बाहर नीचे न उतरना। सहाबा गलती नहीं किए थे, उन्होंने इज्तिहाद किया था। उन्होंने ये सोचा कि वो तो चले गए, वो उनके दिल में ये वहमो गुमान भी ना था कि मैं रसूल के हुक्म की नाफरमानी कर रहा हूं, बल्कि वो तो खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर वहां से हटते हैं। सारे सहाबा वहां के मारे भी जाते हैं, यहां तक कि 70 सहाबे किराम उस जंग में शहीद होते हैं। इससे हमें पता ये चलता है अगर जंग का मारेका भी हो, मेरे मुस्तफा वहां मौजूद हो और वहां नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक हुक्म की तामील अगर सहाबा से इज्तिहादन खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर भी न हो सके तो उसमें शिकस्त हो जाती है, उसमें जाने भी चली जाती है, उसमें अमीर हमजा जैसी शख्सियत को शहीद भी कर दिया जाता है। अब जरा सोचें कि हम हर कदम पर अपने पैगंबर के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। बताओ आज हम कितना मुस्तफा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के हुक्म पर आवाज देते हुए लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते हैं। अजीजाने गिरामी वकार, हमारा तो हाल ये है कि मुअज्जिनीन सदाए आजान पेश करते हैं, लेकिन हम उस वक्त गानों में महव होते हैं। पहले तो यूं तौफीक होती थी, आजान हो रही है टीवी बंद कर दो, आजान हो रही है बातचीत बंद कर दो, आजान हो रही है फिल्म को बंद कर दो, आजान हो रही है मोबाइल के आवाज को बंद कर दो। लेकिन आज आजान भी हो रही है, फिल्म भी चालू है, आजान भी हो रही है, गाने भी चालू है, अजान भी हो रही है, बकवास भी चालू है। फिर किस आस में कहते हो अल्लाह की मोहब्बत क्यों नाजिल नहीं होती? फिर किस आल में कहते हो कि अल्लाह की नुसरत क्यों नाजिल नहीं होती? मेरे रसूल से सहाबा इस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे कि नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, मदीने के तमाम नौजवान हजरात जमा हो जाए, जितने भी जवान सहाबा थे सब के सब जमा हो जाते हैं। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सब बंदी फरमाई और सफ यानी सीधे खड़े कर कर उनको सफ लगाना शुरू कर दिया। इतने में एक खातून मदीना तशरीफ लाती है, एक मदीने की औरत आती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को देखा कि वो अपने गोद में एक 1.5 साल के बच्चे को लिए हुई है। वो औरत आके कहती है, ऐ रसूले मुख्तार, ऐ शहनशाह मदीना, आपका ऐलान मेरी कानों तक आया। मैंने सुना कि आपने नौजवानों को तलब किया है जिहाद में जाने के लिए, आपने नौजवानों को बुलाया है जंग में जाने के लिए। मेरे शौहर किसी जंग में शहीद हो गए, मेरा भाई भी नहीं है, मेरे घर में कोई जवान नहीं है, इसलिए मैं अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर आई हूं, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। सुनो मेरे रसूल ने क्या फरमाया। नबी ने इरशाद फरमाया, ये 1.5 साल का बच्चा जंग में जाके क्या करेगा? न ये तलवार उठा सकता है, न ये हथियार उठा सकता है, न ये खुद से दूध नोश कर सकता है, फिर इसे जंग में ले जाने की क्या जरूरत? वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है कि आपके सारे सहाबा में से कुछ ही सहाबा के पास ढाल है, कुछ ही सहाबा के पास तलवार है, कुछ ही सहाबा के पास सामाने हर्ब है। मैंने ये सोचा कि मैं आपकी खिदमत में अपने बच्चे को पेश कर दूं ताकि आप उस सहाबी को दे दें जिसके पास ढाल नहीं है, और जब दुश्मनों का तीर आए तो ढाल की जगह मेरे बच्चे का सीना उसके तीर की तरफ फेर दे ताकि वो तीर से सहाबी के जिस्म पर जख्म न आए, मेरा बेटा शहीद हो जाए और मेरे बेटे को शहादत का रुतबा मिल जाए। ये सहाबिया थी कि एक ढाल की जगह पर अपने 1.5 साल के बच्चे को पेश कर रही हैं। इस तरीके से मेरे अल्लाह के नबी से सहाबा और सहाबी मोहब्बत फरमाया करते थे। जंगे खंदक के मौके पर 1 महीने तक सहाबा खंदक की जमीन को खोदते रहे, 8-6 गज तक वो जमीन को खोदते रहे। 1 महीना लगा था। वो इसलिए खोदते थे कि काफिरों का लश्कर बहुत ज्यादा था, मुसलमान कम थे और काफिर यकबारगी न
न आ सके, इसलिए खंदक को खोद दिया गया। अजीजान गिरामी वकार, और उस जंग में उस खंदक से बड़ा फायदा भी हुआ। लेकिन असल बात मैं ये बताना चाहता हूं, खंदक में सहाबा ने जंग फरमाई, कुछ सहाबी उसमें जख्मी हो जाते हैं, किसी के हाथ पैर कट जाते हैं, किसी के सर फट जाते हैं, कपड़े बोसीदे पुराने हो जाते हैं, कई दिन गुजर जाते हैं। सहाबा ने गुस्ले नहीं फरमाया है, बदन बिल्कुल तरोताजगी नहीं है, जंग से फरागत पाते हैं, जंगे खंदक से वापस जाते हैं, मदीने की तरफ जब निकलते हैं, राहे मदीना में पहुंचते हैं, बीच में ही हजरत जिब्रील नाजिल होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का एक पैगाम लेकर आया हूं, अभी अभी आप जंग से फारिग हुए हैं, अल्लाह का दूसरा पैगाम यह है कि अब दूसरे जंग की तरफ अब चले जाइए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिब्रील क्या बात कर रहे हो, मेरे सहाबा बड़े थके हैं, मेरे सहाबा सोए नहीं हैं, सहाबा में कुछ बीमार हैं, सहाबा में कुछ जख्मी है, सहाबा के कपड़े फटे हैं, सहाबा ने 1 महीने से खंदक की जमीन को खोदा है, 1 महीने से उन्होंने आराम नहीं किया है, इस्तिराहत नहीं फरमाई है, अब दूसरे जंग के लिए अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ है, मैं अपने सहाबा से मशवरा करूंगा, मैं अपने सहाबा की राय लूंगा। मेरे मुस्तफा ने सहाबा को इकट्ठा किया, उनको जमा फरमाया, और जमा करने के बाद सहाबाए किराम से मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हजरत जिब्रील खुदा का पैगाम लेके आए हैं। जैसे ही सहाबाए किराम को नबी ने ये फरमाया, वो बाअदब और कान खड़े करके सुनने लगते हैं कि अब कौन सा पैगाम आया है, अब कौन सा हुक्म नामा आया है। अजीजाने गिरामी बखार, मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का दूसरा पैगाम यह है कि जंगे खंदक के बाद यहीं से बगैर मदीना जाए हुए, बगैर अपने बच्चों से मुलाकात किए हुए, बगैर अपने पानी बदन पे पानी बहाए हुए दूसरे जंग के लिए यहीं से रवाना होने का हुक्म है। सहाबे किराम फरते अकीदत से झूम जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म आया है तो हम इस जंग के लिए भी तैयार हैं। जब खुदा का हुक्म है तो फिर देर किस बात की। जरा सोचें, मुसलमान थके हैं, जरा सोचें कि मुसलमान परेशान है, उसमें काफी भूख और प्यास को भी बर्दाश्त किया था, कई कई दिन तक खाने का कोई सामान नहीं था। खंदक के मौके पर हजरत जाबिर ने एक बकरी को जमा फरमाया था, जिसमें से सारे सहाबा खाए थे। कहने का मतलब यह है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन में, ऐसे हालात में सहाबा की नबी से मोहब्बत का आलम यह था कि हम बच्चों से मुलाकात करें न करें, बीवी से मुलाकात करें न करें, अपने घर पे जाएं न जाएं, हम अपने जिस्म पर पानी बहाएं न बहाएं, हम अपने कपड़े बदले न बदले, लेकिन खुदा का हुक्म है तो पहले हुक्म खुदा पर हम अमल करेंगे। दूसरी जंग के लिए वहीं से रवाना हो जाते हैं। अब जरा सोचो मुसलमानों, क्या हम भी ऐसे ही अल्लाह के नबी की आवाज पर लब्बैक कहते हैं? हमारी तो नींदें नहीं खुलती हैं, हम इस्तिराहत की बिस्तर को नहीं छोड़ते हैं। वो मुसलमान मदद की आस में आज है जो फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ना आ सके। वो मुसलमान कैसे कामयाब हो सकता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से भी गाफिल हो। अजीजाने गिरामी वकार, इसलिए अगर मदद आज भी नाजिल होगी, नुसरत आज भी नाजिल होगी, अगर अल्लाह के नबी के सहाबा जैसा ईमान और अमल पैदा हो जाएगा। हमें अपने मोहब्बत में अमल को बेदार करना है। हमारे आमाल ऐसे हो कि उस आमाल ऐसे हो कि सामने वाला खुद देख करके कह दे, मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम ये जा रहा है। अजीजाने गिरामी वकार, यूरोप की सरजमी पर एक ईसाई इंसान रास्ते पर जा रहा था, उसे रास्ते में एक ढेला पड़ा मिलता है तो उसने कहा, लगता है मोहम्मद का कोई चाहने वाला इधर से नहीं गुजरा है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी ने अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने मुत्तबईन को, अपने नक्शे कदम पे चलने वालों को, अपने गुलामों को ये पैगाम दिया है कि रास्ते से ढेले को हटाओगे, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा। एक ईसाई ये महसूस कर रहा है कि मोहम्मद का वफादार अगर यहां से गुजरा होता, मोहम्मद का गुलाम अगर यहां से गुजरा होता तो रास्ते पर ढेला नहीं पड़ा होता। अजीजाने गिरामी वकार, तो उस ढेले को देखकर
मोहम्मद मुस्तफ़ा की वफादारी याद आई, उस ढेले को देखकर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत याद आई। क्या हम अब बताओ कि हम सिर्फ मोहब्बत का दम भरते हैं या नहीं? हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम है, सूफियों के बहुत बड़े इमाम है। इतने बड़े इमाम होने के बावजूद, इसके रसूल के वो मुजस्समा थे, इसके रसूल के वो पैकर थे, उसके बावजूद कहते हैं मुझे एक मसला बड़ा मुश्किल लगता है, मुझे एक मसला बड़ा डिफिकल्ट लगता है, मुझे एक मसला बड़ा ही कठिन लगता है। वो ये लगता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि ऐ अबू बकर शिबली बताओ तुम रसूल से मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो, यही मसला बताइए, ये कोई बड़ा मसला है? अगर हम आपसे यही सवाल करें, ऐ रज़ानगर के मुसलमानों बताओ तुम रसूल से मोहब्बत करते हो या नहीं, तो बैक ज़बां कहेंगे हाँ हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अबू बकर शिबली ने कहा अगर मुझसे कोई ये सवाल करेगा कि तुम रसूल से मोहब्बत करते हो या नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए कि अगर मैं कहूँ कि रसूल से मुझे मोहब्बत नहीं, तब तो मुसलमान ही नहीं रह जाएगा, तब तो काफिर इंसान हो जाएगा अगर कहे रसूल से मोहब्बत नहीं। और अगर कहे रसूल से मोहब्बत है तो ये झूठ हो जाएगा, क्योंकि रसूल से मोहब्बत का मतलब कि रसूल की इताअत करनी है, रसूल से मोहब्बत का मतलब रसूल की पैरवी करनी है, रसूल से मोहब्बत का मतलब कि रसूल के फरमान पर अमल करना है। हम किस बुनियाद पर मोहब्बत का दावा करें? नबी की पसंदीदा नमाज को छोड़कर मोहब्बत का दावा करें, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दिए हुए तहाइफ को छोड़कर मोहब्बत का दावा करें। हकीकत तो यही है कि हम ईमान ज़रूर रखते हैं कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत लाजिम है, ज़रूरी है, इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता, लेकिन मोहब्बत का अमल हमारे अंदर मौजूद नहीं है। ज़रूरी है कि हम उस मोहब्बत को अपने आमाल की बुनियाद पर सबूत के लिहाज से दुनिया वालों को पेश करें। अज़ीज़ान गिरामी वकार, मरने के बाद और ज़िंदगी में ही, ज़िंदगी और दुनिया में भी मोहब्बत रसूल सबसे बढ़कर काम आने वाली चीज़ है। इसीलिए इकबाल शायर ने कहा है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इबादत काम आती है न तकवा काम आता है, रसूल पाक की उल्फत का सौदा काम आता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो सुन्नत पढ़ें।